آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز پڑھوانے نہیں آئے تھے، صرف روزہ رکھوانے نہیں آئے تھے، اس ظلم اور جبر کے دور میں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے دور میں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی عظمت بتائی، اور صرف اپنی بیٹی کی عظمت عملی طور پہ کر کے تو دکھائی، اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا۔ یہ میں نے بطور تمہید کا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کو سارے زمین اور آسمان کی بادشاہی زیبا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں بیٹی کی عظمت کیا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن جو ہے پہلے بیٹے کے تذکرے سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری خواتین یہاں موجود ہیں، مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، بیٹی کی پیدائش پر باپ سے زیادہ تکلیف ماں کو بھی ہوتی ہے، ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے، ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے، او ہو پہلے تو بیٹی تھی اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی، دوسری تو تھی تیسری کہاں سے آ گئی۔ میں کہتا ہوں میری بہن، اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا، تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا۔ اگر تو 50 سال کی ہو جائے 70 سال کی ہو جائے تو کچھ بھی کہلائے، مگر اصل تو پہلے تو بیٹی ہے کسی کی، تیرے ماں باپ کے لیے تو بیٹی ہے۔ اس لیے بیٹی سے چڑھنے والوں، بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹی کو معاذ اللہ اپنے لیے آر سمجھنے والوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تزکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے، صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردے غیب اٹھ چکے تھے، بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے، یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا جا کے معلوم کرو، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے، یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک یہ اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، رحمت کی بشارت ملتی ہے، جنت کا مستحق جافظہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو، جب وہ سفر سے آئے، اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور بیٹا ایک ہی ہو، آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی، اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا، بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی، بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اگر 3 عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور 1 ہی عدد بیٹا ہو، آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے، ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے، بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے۔ یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں، 1 عدد اکلوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا، جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں
तुम ने कोई तोहफा खरीदा है और तुम कोई तोहफा लाए हो तो पहले तोहफा बेटे को मत देना, बल्कि तोहफा पहले बेटियों को देना। अगरचे वो 3 हो, उनकी तादाद ज्यादा हो, अगरचे बेटा इकलौता हो, तुम जब सफर से तोहफा लेकर के आओ तो पहले बेटे को मत देना। आकाए करीम फरमाते हैं पहले बेटी को तोहफा देना। और फिर मेरे आका का फरमान सुनो, अपनी माओ और बहनों से कहता हूं मचल जाओ, बेशुमार दुरूद और सलाम हो उस आमिना के लाल पर जिसने बेटी को कितना बुलंद मकाम अता किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम सफर से वापस आओ और तोहफा लेकर के आओ, एक लौते बेटे को पहले तोहफा मत देना, बल्कि पहले तोहफा अपनी बेटियों को देना। आका फरमाते हैं उसकी वजह यह है, अगर तुमने पहले बेटे को तोहफा दिया तो बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बेटियों का दिल बड़ा कमजोर होता है, उनका दिल दुख जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। और आका फरमाते हैं जिसने अपनी बेटी का दिल तोड़ दिया उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं जो बेटी के दिलों को तकलीफ पहुंचाते हैं, गोया कि वो जिस रसूल का कलेमा पढ़ते हैं उस रसूल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं, उस रसूल के दिल को अज़ियत पहुंचाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ नमाज पढ़ने वालों 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तहज्जुद का भी एहतमाम करते हो, कुरान की तिलावत भी करते हो, घरों के अंदर इस्लामी माहौल है, लेकिन मुझे बताओ इस्लाम सिर्फ रोजा नमाज हज और ज़कात का नाम नहीं, क्या ये रसूल पाक की सुन्नत नहीं है कि बेटी का दिल दुखाने वाला गोया कि अपने नबी का दिल दुखाता है, अपने नबी पाक के दिल को अज़ियत पहुंचाता है। आकाए करीम तो फरमाते हैं पहले बेटे को तोहफा मत दो, पहले बेटी को तोहफा दो। अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो, हुजूर ने शुरुआत की है 3 बेटियों से। आका फरमाते हैं जिसके घर में 3 अदद बेटियां पैदा हो और वो खुशी करे। खुशी का मतलब ये कि दिल से, गली वालों को बताने के लिए नहीं, अंदर से जल रहे हैं और सामने से इजहार करें। मौलाना कह रहे थे बेटी पैदा होती तो जलेबी तकसीम होती। मौलाना ये पहले की बात है, अब तो जलेबियां भी तकसीम नहीं, अब तो 3-4 दिन तक के बताया भी नहीं जाता कि पैदा क्या हुआ है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है। और अगर जलेबी भी तकसीम होती है तो इस खौफ से होती है कि चलो बांट दो वरना लोग कहेंगे बेटी अच्छी ना लगी। इसलिए नहीं कि बेटी की खुशी में, खुशी दिल की कैफियत का नाम है। जिसको इख्तियार नहीं है वो बेइख्तियार उछल पड़ती है और चेहरे खिल जाते हैं। वो जो बेइख्तियार चेहरे खिलते हैं ना, वो बेटियों की विलादत पर अब कहां है। अब तो जैसे बेटी की विलादत की खबर सुनते हैं तो सर चकराता है, आंखों में अंधेरा आता है। उसकी शादी कौन करेगा, दामाद कैसा होगा, ये कैसा होगा। नादान, तूने बेटी को जन्म दिया है, उसकी तकदीर को तूने जन्म नहीं दिया। तकदीर तो खुदा लिखता है। और सुन ले, ये दुनिया की मुसीबत भी हो तो वो 2 दिन की, अभी मैं उसका जायजा लूंगा, अभी आपको बताऊंगा। बेटियों को मुसीबत होती है तो उस पर भी क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 बेटियां जिसके घर में पैदा हो और वो खुशी करे, यानी गम नहीं करे, खुशी करे। आका फरमाते हैं फिर उनके अच्छे नाम रखे, उनकी अच्छी तरबियत करे। अच्छे नाम भी रखे, अच्छी तरबियत भी करे। बल्कि मुझे तो यहां तक लोगों ने बताया, यहां तक लोगों ने बताया कि जिस औरत को बेटियां ही पैदा होती है, शौहर उसको धमकी देता है कि तुझे सिर्फ बेटियां होती है, बेटा पैदा नहीं होता, इसलिए अब की बार बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे। इस तरह की धमकियां दी जाती है। बल्कि जिस घर में जिस बहू को बेटियां होती है उन बहुओं को ताना दिया जाता है तू तो बेटी की माँ है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, बेटे और बेटी माँ की तरफ से नहीं होते, बल्कि औलाद जो मिलती है वो बाप की तकदीर से मिलती है। तो जो लोग औरतों को ताना देते हैं ना कि तुझे बेटियां ही पैदा होती है, औरत का कोई कसूर नहीं है। ये तो मजहब है ना, मजहब है, मजहब की तालीम है। ये क्या तालीम है मजहब की? मजहब की तालीम ये है कि बाप की तकदीर से औलाद मिलती है, क्योंकि औलाद का ताल्लुक किससे है? बाप से, क्योंकि वो बाप की पुश्त में ना। ये मजहब है। साइंस भी ये कहती है कि औरत के अंदर जो औलाद की पैदाइश के मादे हैं वो दोनों एक से हैं। एक समझाने के लिए एक से। और मर्द के यहाँ
एक्स और वाई दोनों है। तो जब एक्स से एक्स की मुलाकात होती है तो बेटा पैदा होता है, और जब एक्स से वाई की मुलाकात होती है तो बेटी पैदा होती है। ये साइंस कहती है। अब आप मुझे बताएं, आप जिस औरत को ताना दे रहे हो उसके वहां तो वाई है ही नहीं, वो वाई तो आपकी वजह से है। तो आपको ताना उसको नहीं देना चाहिए, ताने का जिम्मेदार तो आप हो। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप भी ताने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया हम जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं और जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं। चाहत तो उसकी है, ताना देने वाला तू कौन होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो। अब जब अल्लाह की चाहत पर मुसलमान राजी ना हो तो फिर कौन राजी? हुजूर फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो, अच्छे नाम रखे, अच्छी परवरिश करे और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे। आका फरमाते हैं इस तरफ मेरी तरफ देख लें। अब आप, मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया 3 बेटियों की परवरिश करे, अच्छे घराने में शादी कर दे, इस हाल में कि बेटियों का दिल न दुखा, इस हाल में कि बेटियों की अच्छी परवरिश की हो। आका ने फिर अपना हाथ उठा दिया। मेरे हाथ उनके हाथ की तरह नहीं, किसी के हाथ उनके हाथ की तरह नहीं, सिर्फ बताने के लिए हुजूर सैयद आलम ने अपना हाथ उठा दिया। वो हाथ जिस समतोड़ा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर ने अपने हाथ उठा दिए, वो हाथ जिसको कुरान यदुल्लाह कहता है। कुर्बान जाएं वो हाथ उठाएं जिन हाथों की शान ये है वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। अगर वो हाथ कंकरी फेंक दे तो कुदरत कहे तूने नहीं, महबूब हमने कंकरियां फेंकी है। हुजूर ने वो हाथ उठाए, सहाबा की तवज्जो हो गई। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा ये देख रहे हो ये 2 उंगलियां कितने करीब है। हुजूर ने यूं किया, सरकार ने गोरे गोरे नर्म नर्म खूबसूरत हाथ यूं किया, गोया कि वो यदुल्लाह को हुजूर ने यूं किया और फरमाया मेरे सहाबा ये जो देख रहे हो 2 उंगलियां कितने करीब है। अब आप देख रहे हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए, ये 2 उंगलियां कितनी करीब है, इनमें कोई फासला नहीं है। आका फरमाते 3 बेटियों का बाप जो बेटी की पैदाइश पर खुशी करे, अच्छे नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छे घराने में शादी कर दे। हुजूर फरमाते हैं जैसे ये 2 उंगलियां करीब है, 3 बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने ही करीब रहेंगे। नमाज पढ़ने पे सवाब की बशारत है, हज पढ़ने पे मगफिरत की बशारत है, बेटी की परवरिश करने पर यूं जन्नत में पड़ोस मिलने की बशारत है। हुजूर ने जो कह दिया हमारा ईमान है। खुदा की कसम, अगर आपको किसी डॉक्टर का पड़ोस मिल जाए, किसी सियासतदान का पड़ोस मिल जाए, आप कहते हैं अपने को टेंशन नहीं, इसलिए कि पड़ोस फुला का मिला है। खुदा की कसम दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में मालिक जन्नत का पड़ोस जिसको मिल जाए फिर उसकी शान क्या होगी और वो किस बुनियाद पे मिलेगा। हुजूर फरमाते इतने करीब होंगे, कुर्बान जाए इतने करीब होंगे। दुनिया का लालची तो शायद इसकी अहमियत महसूस करे ना करे, हुजूर का सच्चा गुलाम तो कहे अल्लाह बेटियों से घर भर दे। हुजूर का सच्चा गुलाम जिसने दीन पढ़ा और जो सच्चा मुसलमान हुआ हो, अब बताएं वो दुआ ना करेगा अल्लाह बेटी अता कर दे। सरकार ने फरमाया इतने करीब होगा। महफिल मौजूद थी, क्योंकि हर बंदे की यहाँ, हर खुशनसीब की यहाँ 3 बेटियां नहीं होती ना। मैं उसको खुशनसीब मानता हूं जिसके घर 3 बेटियां हैं। खुश हो जाओ, उन पे जुल्म नहीं करना, उनको बोझ नहीं समझना, उनको तकलीफ का जरिए। कहां से शादी होगी मौलाना? अरे नादान, जिसने पैदा किया वो इंतजाम भी करेगा। अल्लाह पे तवक्कुल तो कर, अल्लाह पे, मोमिन का तवक्कुल अल्लाह पे होता है, भरोसा अल्लाह पे होता है। लोग बहुत टेंशन में होते हैं और टेंशन इसलिए पैदा हुआ कि लोग लालची हो गए। अब शादियां मालदारों के यहाँ जल्दी होती है, गरीबों की बेटियों को कौन पूछता है। दीनदार लोग भी सोचते हैं कि जरा कोई मालदार घराना मिले। हालत ये है, कैफियत ये है। हर घर में 3 बेटियां नहीं होती। हुजूर ने फरमाया 3 बेटियों का बाप, उसकी परवरिश करने वाला और मैं इस तरह जन्नत में होंगे जैसे 2 उंगलियां करीब है। एक सहाबी के घर 2 बेटियां थी, खड़े होके कहते मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अगर किसी के घर 3 ना हो सकी बेटियां, 2 ही हो तो
आका फरमाते उसकी परवरिश करे तो वो भी मेरे साथ इसी तरह जन्नत में होगा। एक वाला तड़पने लगा और सोचा कि मैं न 3 है न 2 है। खड़े होकर अर्ज की आका अगर 3 ना हो सके 2 भी ना हो सके, अगर ऐसा ही हो 1 ही मिले तो। यानी उस महफिल को हुजूर ने इस तरह रश्क की महफिल बना दिया कि एक वाला 2 की तमन्ना करने लगा और 2 वाला 3 का मुतमन्नी हो गया। यानी बेटियों को अपने हाथ से दफन करने वाले अब बेटियों का मुतालबा करने लगे। यही तो मेरे नबी का इनकलाब है, यही तो मेरे रसूल का इनकलाब है कि कहां वो दौर जिस दौर में बेटियों को दफन किया जा रहा था और कहां वो दौर मस्जिद नबी के सहन में लोग चुप के कह रहे थे अल्लाह एक क्यों दिया दूसरी भी दे दे। जो 2 वाले थे वो कहते थे अल्लाह 2 क्यों तीसरी भी दे दे। कौन? जिसने अपने हाथों से बेटियां दफन की थी। ये इनकलाब है मुस्तफ़ा करीम का। हुजूर सिर्फ मस्जिदों को आबाद करने नहीं बल्कि बेटियों की अहमियत बताने भी आए थे। हमने दीन का कुछ हिस्सा लिया बाकी दीन छोड़ दिया। ये यहूदियों का तरीका है। दीन मुकम्मल ये है जो हुजूर अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो 2 वाले को जन्नत की बशारत मिली तो एक वाले ने चुपके से अर्ज किया अब्दुल्ला और आमिना के लाडले, मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप पे कुर्बान और मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह जिसके यहाँ 3 ना हो सके 2 को बशारत, जिसके यहाँ 2 ना हो सके आका अगर किसी को 1 ही बेटी हो या रसूल अल्लाह तो उसके लिए क्या है। मेरे नबी का दरियाए करम जोश में था, फरमाया अगर किसी के यहाँ 2 ना हो सके 3 ना हो सके और 1 ही बेटी हो, 1 बेटी की परवरिश पर भी मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। वो मेरे इतने करीब होगा जैसे 2 उंगलियां आपस में करीब है। हुजूर ने किसको बशारत दी? बेटे के बाप को नहीं, बेटी के बाप। आज तो उसका सीना तन जाता है जो बेटे का बेटा भी दे तो खुश है, कम की बात। बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से मिशन चलता है, बेटा भी होना चाहिए। लेकिन आज हम बेटी की फजीलत इसलिए बता रहे हैं कि बेटियां बोझ लगने लगी हैं माँ बाप